Class 9th, we are again focusing on the concepts of relative molecular masses and percentage composition, and I'm again repeating with you these questions so that you can do practice at your home and be prepared for your board examination. Right? So this is also an important portion. So they ask you about the relative molecular mass, or the question can also be in place of relative molecular mass, they can also write down molecular mass, right? Molecular mass word can also be used in place of relative molecular mass, or molar mass also. So any of the word can be asked, and but you have to follow the same pattern. So first of all, your duty is you will write down the formula. So molecular weight of sodium bicarbonate. Now it is a high time you should know how to calculate the or write the formula for the particular compounds. So molecular weight of sodium bicarbonate we have written in this manner. Now after that, what we will do, we'll just see, they have already given you all the atomic weights of different elements. So just see how many elements are there. 1, 2, 3 and 4. This 4 they have given you. Now first of all, before starting it, please see how many atoms of different elements are given. Sodium 1 atom, hydrogen 1 atom, carbon 1 atom, oxygen 3 atoms of oxygen. So let's start writing the formula first, because you have the markings of the formula. So atomic weight of sodium, it is 1. So if you want to multiply by 1, fine. If you don't, then also no need to write, because it's a single atom. Then plus atomic weight of hydrogen plus atomic weight of carbon plus 3 atoms of oxygen are there. So 3 into atomic weight of oxygen. This way you will write down. Now put the values. So atomic weight of sodium is how much? It is written 23 plus it is 1, right? फिर अगर यहाँ तुम कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लो पर एटम है ना, तो इंटू 1 कर लो इसे, प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन में इज़ देयर, प्लस 1 एटम ऑफ दिस थिंग कार्बन इज़ बीन देयर. सो यू कैन राइट डाउन ओवर हियर, प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो कुछ भी कर लो, ये आगे पीछे लिख लेना, इससे कोई इशू नहीं पड़ता है. तो दिस वे तो आप कैलकुलेट करेंगे 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48. हाउ मच यू आर गेटिंग 84. सो जो मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आपका आ गया है 84. अगेन आई एम टेलिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन लिखा हो, दोनों चीज़ें सेम होती हैं. ठीक है, सो दिस वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट योर आंसर. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. Now the next question, find out the molecular mass of the urea. Urea's formula is given, so they will give you, it's new to you, so they will give you the formula also. So let's start with the same manner. So first of all, we will just put the molecular weight of we'll calculate the molecular weight of urea. So molecular weight of urea, NH2CO NH2. Just first of all see the atoms. 2 atoms of nitrogen, 4 atoms of hydrogen, 1 atom of carbon, 1 atom of oxygen is given. So there are 2 atoms of nitrogen, 4 atoms of hydrogen, 1 atom of carbon, 1 atom of oxygen is been there. So we'll start writing the formula for it also, same manner. So atomic weight of nitrogen, so multiply it by 2. How many atoms were there? 2. So you can multiply, you can write down 2 over here. तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ ऐसा करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो. हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन आर देयर, टोटल 4. सो 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन. कार्बन कितना है? एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन सिंगल एटम है. फिर आपकी क्या बचा हमारा? ऑक्सीजन है, तो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन है ना, सही लिखा है. 2 atoms of hydrogen, nitrogen, 4 atoms of hydrogen, 1 atom of carbon and 1 atom of oxygen. ये फॉर्मूला है. अब इसमें हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन टू अस. तो आप 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16. तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास आएंगी.
आप इसको ईज़िली अपना कैलकुलेट कर लेंगे जब आप इसको देखेंगे। 28 है, ये 4 है, ये 12 है, 16 है, तो ये कितना आ रहा है आपका 60। ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 60। Now we'll focus on this next question. The find the relative molecular mass of water of crystallization and green vitriol. देखो in your books green vitriol formula is already given, but still I have given you. Please focus that. Try to learn these formulas, and these values are given to you. Atomic weights are given to you. So your duty, first of all, you write the formula. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द नंबर ऑफ एटम्स. Fe इज सिंगल, सल्फर इज सिंगल, ऑक्सीजन इज़ 4 एंड ओवर ईयर इज़ 7. बट इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे. पहले इतना लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे सल्फर इंडिविजुअल, हाइड्रोजन 14 है आपका, ऑक्सीजन आपके 7 एटम्स है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पे जाएगा. 7 2 ज़ 14 एंड 7 1 ज़ 7. तो इसको अलग करना डॉट से और इसे अलग करना. ये ना करना कि इकट्ठा तुमने 4 + 7 जोड़ के और अपना ईजिली आपने 11 ऑक्सीजन एटम को कर लिया, तो यू विल गेट कन्फ्यूज, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी चलता है, वो भी हम बाद में देखेंगे. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअली टास्क यू शुड यूज. So let's take the molecular weight of FeSO4.7 water. So how to write down, ठीक है. So atomic weight of Fe रहेगा, सिंगल एटम है. फिर atomic weight of sulfur plus atomic weight of oxygen. How many atoms are there? 4. ठीक. प्लस अब वाटर को इंडिविजुअली टास्क लेके चलना है. ठीक, तो इसको देख लीजिए आप, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वाटर के लिए हम ये इस तरह से लिख सकते हैं. अगर चाहें तो हम इंडिविजुअली टास्क लिख सकते हैं. कैसे, देखो मैं इसको पूरा इलेबरेट करके दिखा रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट डाउन 7. ठीक है. वाटर बाहर ये लिखा हुआ है 7 क्योंकि 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. आपने एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन लिखा, कितने हैं, 2 है, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन लिखा. ऐसे भी कुछ बच्चे लिखते हैं. कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, जैसे 7 2 ज़ा 14 है, वाटर को अलग रखा, 14 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 7 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो सबसे ये चीज़ है, लेकिन सबसे कन्वीनियंट है कि आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आपको लगे आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स डिप्यूट द वैल्यूज़. तो Fe के लिए हमने वैल्यू देखी थी 56 वाज गिवन टू अस. सल्फ़र हमें 32 दिया रखा है, ऑक्सीजन हमें मालूम है 16 दिया रखा है, और ये हमें जो दिया रखा है वो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स. अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ टोटल 18 आता है हमारा. ठीक है. ये चीज़ हमारी आएगी. अब इसको हम सिंपली इज़ दैट कि हम अपनी वैल्यूज़ को डिप्यूट कर लें. फिर 56 + 32 + 64 + 126. तो ये टोटल जो वैल्यू हमारी आएगी ये आएगी 278. ये हमारी मॉलिक्यूलर वेट इस पूरे का हो जाएगा. एक्चुअली ये ना ये क्वेश्चन थोड़ा अलग फॉर्म में भी आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशंस के टर्म्स में देखते हैं. अब सपोज़ करो एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम इलेबरेट कर दें कि इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मॉलिकुलर मास पूछना ये ग्रीन विट्रॉल का, दे आस्क यू फाइंड आउट द, इसी को थोड़ा इलेबरेट कर लो तो थोड़ा समझ में आएगा. परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ठीक है. यही चीज़ हो जाए कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. एक्चुअली आपने वाटर चैप्टर ही पढ़ा नहीं है तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी. तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये जो ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स दिए रखे हैं, ये जिन सॉल्ट्स में इस तरह से लगे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, इनकी नंबरिंग कुछ भी हो सकती है. दे कम्स इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस. ठीक है. तो ये आपको यानी इस वाटर का आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन. तो लेट्स फोकस ऑन इट. कैसे हम निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है. तो परसेंटेज ऑफ वाटर आपका रहेगा. सो देर आर 2 मेथड्स. अब परसेंटेज आपको वाटर निकालना है तो इसमें हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं या फॉर्मूलेस के बेसिस पर भी, उसको भी देख लेते हैं. आपका टोटल जो सॉल्ट का जो FeSO4.7 वाटर की जो मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, दैट इज़ अबाउट 278. तो वही कंडीशन हो जाती है कि 278 ग्राम्स ऑफ FeSO4.7 वाटर कंटेन्स कितना वाटर, कंटेन्स वाटर. वाटर कितना कंटेन कर रहा था वो,
126। ठीक है, तो मैथ्स के हिसाब से देयरफॉर 100 ग्राम, परसेंटेज के लिए 100 ही लेके चलते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ FeSO4.7 वाटर कंटेन्स वाटर कितना हो जाता है? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड कर दोगे, है ना। तो आप क्या लिखोगे, जगह कम है मैं नीचे लिख दे रही हूँ आप, लेकिन कोशिश करना इसी पे लगाना। 126 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 278। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी इक्वल आएगी जब आपको उसको डिवाइड करोगे? 45.32%। ये वैल्यू है। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है जो हम मैथ्स में अप्लाइड करते हैं कि जो टोटल हमारा सॉल्ट था उसमें वाटर का पोर्शन कितना आया, उसका 126 आया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका 100 परसेंटेज में लेके चले तो 100 में कितना आया, ये आया। कभी कभार बुक्स में ना परसेंटेज ऐसे भी दिया रहता है, परसेंटेज ऑफ वाटर, लेकिन आई वुड एडवाइस यू फॉलो दिस मेथड ओनली। तो बुक्स में बहुत सी अलग अलग बुक्स हैं, उसमें ऐसा दिया रखा था परसेंटेज ऑफ वाटर। तो ये आपका जितना परसेंटेज है आप डायरेक्ट 126 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 278 ऐसे करके भी लिखा रहता है, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट हो जाता है। सो नेवर अप्लाइड दिस मेथड। ये करेक्ट है लेकिन कौंसिल थोड़ा सा लॉन्ग मेथड चाहता है, तो ऑलवेज़ अप्लाई दिस थिंग। तो तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि आपका टोटल जो परसेंटेज है वाटर का वो इस तरह से आप निकालोगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली चीज़ें आती हैं। एक्चुअली यही क्वेश्चन जो है जो मैंने तुम्हें बोला अभी, आप इस क्वेश्चन के काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन करके लिख के आ जाए क्वेश्चन पेपर में ऑफ FeSO4.7 वाटर। ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे कि परसेंटेज लॉस ऑफ मास ऑफ हाइड्रेटेड when it is completely डिहाइड्रेटेड, है ना। एक कभी कभी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, मतलब हाइड्रेटेड का मतलब हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, डिहाइड्रेटेड का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो तरीका यही है, इसी बेसिक का, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है आपकी। ठीक है, सो आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। दिस वे यू कैन डू द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। वी कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। अब हम एक और ले लेते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, कार्बन 12 है, H इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 16। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको स्टार्ट करना पड़ता है वही मॉलिकुलर मास से, बिना उसके तो निकलेगा नहीं। कभी का क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, इसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे, या वो रिलेटिव मॉलिकुलर मास जो भी कह दो, जो है ये मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड आप यूज़ करोगे। कैसे करोगे? एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, कितने कार्बन एटम्स हैं? 2, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 2, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, कितने हैं? 3 + 1 = 4। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 ही आपके ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 आपके हाइड्रोजन एटम है। सो 2 × 12 प्लस 2 × 16, वैल्यू वहाँ से देख के आप डिप्यूट कर सकते हैं, 4 × 1। तो आपकी ये वैल्यूज़ आराम से कैलकुलेट आप करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपकी ये 60 वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें क्या है, देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट सबका पूछा गया है, कार्बन का भी, ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी ना, ईच लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द परसेंटेज ऑफ कार्बन फर्स्ट। ठीक है, आपको तीनों निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी ये सब पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आप यू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी दी रखी है? 60। तो 60 ग्राम ऑफ, फॉर्मूला क्या है? एसिटिक एसिड कंटेन्स कार्बन, कितना है कार्बन? टोटल कार्बन 2 × 12 है, यानी 24 है। ठीक है, देयरफॉर 100 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स कार्बन कितना हो गया? 24 × 100 डिवाइडेड बाय 60।
डिवीज़न इसी पे देना, क्योंकि इसी के उस पे ओवरऑल डिवीज़न पे मत देना, ऐसे देना। तो कितना आ जाएगा आपका 40%। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, वही कंडीशन है। 60 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन। देखो कितना हाइड्रोजन आइटम है, कहाँ गया, 4। ठीक है, 4 है, तो कितना है आपका, 4 है। 4 इंटू 1 था आपका, तो आपने टोटल 4 लिखा। देयरफॉर 100 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन हाइड्रोजन, 4 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, यही रहेगा ना। तो ये आपका आ जाएगा 6.67%। ठीक, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अगर परसेंटेज ऑक्सीजन अगर आपको निकालना है तो आपको याद होगा कि आपको वही थ्योरी अप्लाई करनी है कि 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स ऑक्सीजन याद आ रहा है उस फॉर्मूले में कितना था, टोटल 2 है, तो टोटल कितना हो गया था, 32 हो गया था आपका ना, क्योंकि 16 वैल्यू थी इसकी, तो ये 32 है। ठीक, देयरफॉर 100 ग्राम्स, मैं तो ऐसे लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। 100 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो कितना हो गया आपका परसेंटेज, 53.33%। तो आपने सबकी वैल्यू निकाल दिया, हाइड्रोजन की भी, ऑक्सीजन की भी, कार्बन की भी। Now let's start with this question, and it is written, find the percentage composition of water crystallization in blue vitriol. I am again telling you, it's not at all necessary they'll give you the formula, because in your books these formulas are already given and it is asked that you should learn them. कुछ चीज़ें होती हैं देखो स्पेसिफिक होती हैं, उनको आप है ना बनाते नहीं हैं, you always try to learn them. So this formula still I have given you, I have given this value will be given to you, but the formula it's not necessary, they'll give you. So your duty is, first of all you check it out how many atoms are there for different elements. Copper is 1, sulfur is 1, oxygen is, again it's related to FeSO4 वाला ना, ग्रीन विट्रॉल हमने पढ़ा था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कर लेना। SO4 इसमें यह 4 दिया रखा है, यहाँ पे सिंगल एटम सल्फर का है, या ऑक्सीजन इज़ 4, हाइड्रोजन इज़ टोटल 10 एंड ओवर या ऑक्सीजन इज़ 5. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो मॉलिकुलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट .5 वाटर, इंडिविजुअल टास्क हैं, अलग अलग करके चलना. लेट्स गो. एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज ओवर या 4 प्लस वाटर का लिख लो 5 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना, ये चीज़ें हैं आपकी. हाँ, ये आपकी कंडीशन है जो आपको ईजिली आप कर सकते हैं. ठीक, दिस वे यू कैन डू इट. नाउ पुट द वैल्यूज़. Cu के लिए 63.6, सल्फ़र इज़ हाउ मच 32, ऑक्सीजन ओवर ईयर 4 इंटू 16 प्लस ये 5, ये टोटल वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 आएगी आपकी. ठीक है, वाटर का याद रखना 18 ही होता है, क्योंकि 2 1 2 और ये 16 18. ठीक है, तो ये आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं. 63.6 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 249.6. दिस मच इज़ देयर. नाउ दे आर आस्किंग द परसेंटेज ऑफ वाटर, है ना, यही पूछा गया है इन लोगों ने. अब वही वाली बात है कि 249.6 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट .5 वाटर कंटेन्स वाटर, कितना कंटेन कर रहा है वाटर, टोटल 90. ठीक है, देयरफॉर 100 ग्राम्स ऑफ CuSO4 .5 वाटर कंटेन्स वाटर इज इक्वल्स टू 90. ठीक है, divided by 249.6 into 100. This way you can do it. Now when you calculate it up, you will get a value of 36.9
0.05%. This is a value which will come for the water crystallization part, composition of water of crystallization. So maximum portion important questions we have covered. I think nothing has been left over here. But I have recall you the important parts. I have focused these parts because these questions are important and बच्चे confuse हो जाते हैं water crystallization में. Rest of the questions are given in your book. So please focus them, practice. ये question आपका practice वाला question है, पेज नंबर 13 में दिया रखा है, last question है, so that you can do it, है ना. So I think most of the things are covered. Do practice, repeat these things, क्योंकि इस तरह के question जो water of crystallization वाले होते हैं नए होते हैं, बच्चों की confusing होते हैं. मैंने copper sulfate का आपको बता दिया है. I've given you this green withdrawal, blue withdrawal, both the examples I have covered it up. So if you see some other example, urea is important, so that also I have done to you. So that portion you can have a look, and please practice other examples also. If you have other books or some unsolved questions, then you can do it.